नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। राहुल गांधी का वायनाड लैंडस्लाइडिंग्स को कौमी आफत करार देने का मुतालबा। लोकसभा में अपने बयान के दौरान कही ये बात। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल जुमरात को लोकसभा में होगा पेश। अपोजिशन ने शुरू की मुखालफत। राज्यसभा की 12 सीटों पर 3 सितंबर को होगी पोलिंग। इलेक्शन कमीशन ने किया ऐलान। बांग्लादेश से दिल्ली पहुंचा एयर इंडिया का तैयारा। आने वाले मुसाफिरों ने कहा वहां सब ठीक है। और विनेश फोगाट की हालत में सुधार। ओलंपिक पॉलीक्लिनिक में कर रही आराम। नाअहल करार दिए जाने के बाद बिगड़ गई थी तबीयत। वक्फ तरमीमी बिल जुमरात को लोकसभा में पेश किया जाएगा। पहले इस बिल को बुध को पेश किए जाने की खबरें थीं। अक़लियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू इस बिल को पेश करेंगे। लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई का कहना है कि बिल को पहले स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड एक्ट में तरमीम के लिए ऐवान में बिल पेश होने से पहले ही अपोजिशन ने इसकी मुखालफत शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के लीडर राम गोपाल यादव ने कहा है कि वक्फ पर नया कानून मंजूर नहीं है। वहीं कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने भी वक्फ बिल की मुखालफत करने का ऐलान किया है। लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने वायनाड में चट्टानें खिसकने को कौमी आफत करार देने और वायनाड के लिए एक सी बाज़ाबातकारी पैकेज देने की अपील की है। पैकेज में आफत के मुकाबले के लिए बुनियादी ढांचा बनाना और लोगों की मदद करना शामिल है। लोकसभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने मरकज और रियासती सरकार, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फौज, बहरिया, कोस्टल गार्ड, फायर ब्रिगेड महकमे और दीगर लोगों के काम के लिए किए गए राहत और बचाव के कामों की तारीफ की। राहुल ने पड़ोसी रियासतों कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना से मिली इमदाद की भी सताइश की। वाज़ेह रहा है कि वायनाड में आई कुदरती आफत में 200 से ज्यादा लोग मारे गए और कई लापता हैं। Speaker sir, thank you for permitting me to raise this issue of the tragedy in Wayanad. I visited Wayanad with my sister some days back, and I saw with my own eyes the devastation, the pain and suffering that resulted from this tragedy. Almost 2 kilometers of the hill had just collapsed, and almost a river of stones, river of mud had come down, and more than 400 people, more than 200 are dead and vast number are missing, but the eventual casualty is going to be 400 plus is what it seems. I'd like to commend the work of the union and state government, of NDRF and SDRF, of the Army, Navy and Coast Guard, District Administration, Forest Department, Fire and Rescue, health personnel, and assistance also from the states Karnataka and Tamil Nadu. Telangana. It was also nice to see that all communities came together, everybody came together to help the people. People from different ideologies, different communities, everybody came together and helped. Landslide has cut vital roads and has made it nearly impossible for rescue teams to reach the far reaches. This is, I think, a huge tragedy, sir. And it's a very concentrated tragedy located in one very specific area. So I would urge the union government to support a comprehensive rehabilitation package for Wayanad, including for building disaster-resilient infrastructure and to help the affected communities. I would also like to urge the union government
to enhance the compensation that people are getting. And finally, I would also like to urge the government to declare the Wayanad landslides as a national disaster. Speaker, sir, I saw it with my own eyes, and I've seen many disasters. I've visited many different places where disasters have taken place, but it was very, very sad to see here that in a number of cases, only one member of a family is remaining. Mother, father, grandmother, brother, everybody is dead, and there's only one person remaining. Sometimes the person is a child, sometimes the person is an adult. So it was a real tragedy to see that. And I'd like to also thank the entire House for the support that everybody has given to the people of Wayanad. Thank you. इलेक्शन कमीशन ने राज्यसभा की 12 खाली सीटों के लिए इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने बुध को कहा कि 9 रियासतों की खाली हुई 12 राज्यसभा सीटों के लिए 3 सितंबर को इलेक्शन होगा। मरकजी वज़रा पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत मौजूदा अरकान के लोकसभा का रुकन मुंतखब होने के बाद राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो गई थीं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त तक उनकी जगह वजीर आतिशी परचम कुशाई करेंगी। केजरीवाल फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन पर दिल्ली आबकारी पॉलिसी में मुबैना घोटाले, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। दिल्ली में यौम आज़ादी के मौके पर दिल्ली सरकार छत्रसाल स्टेडियम में तकरीब करती है, जिसमें वजीर आला अरविंद केजरीवाल परचम कुशाई करते हैं, लेकिन इस बार वो जेल में है, इसलिए उन्होंने अपनी काबिनी वजीर आतिशी को झंडा फहराने का इख्तियार दिया है। हिंदुस्तानी पहलवान विनेट फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 में खातून कुश्ती के 50 किलोग्राम के जुमरे से नाअहल करार दिए जाने पर मरकजी वजीर बराए खेल मनसुख मंडाविया ने कहा है कि विनेश फोगाट का वजन ज्यादा होने के सबब पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा। वो 50 किलो वजन के जुमरे में खेल रही थी। विनेश फोगाट का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए उन्हें नाअहल करार दे दिया गया। इस मामले में इंडियन ओलंपिक कमेटी ने आलमी कुश्ती फेडरेशन से एहतजाज भी दर्ज किया है। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक की स्पर्धा से बाहर होने पर मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। UWW के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा PT उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। विनेश मंगलवार 6 अगस्त को 3 मुकाबले जीतकर 50 केजी रेसलिंग ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को, क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को
3-2 से मात दी थी। उन्हें बुधवार 7 अगस्त की रात करीब 10 बजे गोल्ड मेडल के अमेरिकी रेसलर सारा एन हिल्डरब्रांड से मुकाबला करना था। जहां तक उनकी तैयारी हेतु सहायता का प्रश्न है, भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसका विवरण इस प्रकार है। ओलेर अकोच कोच के रूप में उसके साथ थे, वैन पैट्रिक लॉम्बार्ड स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, अश्विनी जीवन पाटिल फिजियोथेरापिस्ट, मयंक सिंह गरिया स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, शुभम और अरविंद स्पारिंग पार्टनर। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। स्पेन के ग्रेट पिक्स में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता, साथ ही 3 जुलाई से 13 जुलाई 2024 10 दिन तक मैड्रिड स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 में खातून कुश्ती के 50 किलोग्राम जुमरे से नाअहल करार दिए जाने पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की सदर पीटी उषा ने कहा है कि विनेश फोगाट की नाअहली बेहद चौंकाने वाली है। हम विनेश को सभी तिब्बी और जज्बाती इमदाद दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि हिंदुस्तानी पहलवान विनेश फोगाट को ज्यादा वजन के सबब खवातीन कुश्ती के 50 किलोग्राम जुमरे से नाअहल करार दे दिया गया था। रात भर टीम की कोशिशों के बावजूद उनका वजन 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम ज्यादा पाया गया। Vinesh disqualification is very shocking, and I met Vinesh at the Olympic Village Polyclinic a short while ago and assured her complete support of the Indian Olympic Association, Government of India and the whole country. We are providing Vinesh all medical and emotional support. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh, and IOA is following that up in the strongest possible manner. I am aware of the relentless effort made by Vinesh medical team led by Dr. Dingshaw Patiwala and the Chief Dimission Gagan Naran through the night to ensure that she could meet the competition requirements. Wrestlers usually participate in a weight category less than their natural weight. It gives them an advantage since they are fighting with less stronger opponents. The process of weight cut prior to the weight in the morning involves a calculated restriction of food and water, and besides this the athlete needs to sweat, and that sweating is done with sauna and with exercise. Now this weight cut has the benefit of putting you into a lighter weight category, but does cause weakness and energy depletion, and this is counterproductive to participation. So most wrestlers will thereafter go in for some amount of energy restoration with limited water and high energy foods, and these are usually given after the weigh-in. The calculation from the nutritionist which is done is athlete specific, and Vinesh's nutritionist felt that the usual amount that she takes is about 1.5 kilograms totally over the day, which gives enough energy for the bouts. Sometimes there's also a factor of a rebound weight gain following competition. Now Vinesh had 3 bouts, and hence to prevent any dehydration, some amount of water had to be given. We found that her post-participation weight was increased more than normal, and the coach initiated the normal process of weight cut that he has always employed with Vinesh. This is something that's worked with her for a long period of time. He felt confident that this would be achieved, and over the night we went ahead with the weight cut procedure. However, in the morning we found that despite all of our efforts, her weight was 100 grams over her 50 kilogram weight category,
and hence she was disqualified. We had tried all possible drastic measures throughout the night, including cutting off her hair, shortening her clothes, and despite all of this, we could not make that 50 kg weight category. Following disqualification as a precautionary measure, Vinesh was administered some intravenous fluids just to prevent dehydration. And typically we get a few blood tests done just to make sure that everything is normal. So this process is going on at the local Olympic hospital here. All of Vinesh's parameters during this weight cut were normal, and throughout this process she actually felt perfectly normal. Vinesh just interacted with IOA President Dr. Mrs. P.T. Usha and mentioned that although she is physically and medically perfectly normal, she is disappointed that this is her third Olympics and she had to be disqualified. The IOA is taking every step to ensure that the morale of the contingent remain high. We are sure all Indians will stand with Vinesh and the entire Indian contingent. दिल्ली में भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस ने नज़्म ख़्वानी का डिस्ट्रिक्ट जोनल सतह का मुकाबला मुनक़्क़िद किया। इस मुकाबले में सीनियर गर्ल्स कैटेगरी के 1.5 दर्जन से ज़ायद स्कूलों ने हिस्सा लिया। इस ज़ुमरे में माउंट कार्मल स्कूल की 11वीं जमात की तालिबा तरब ज़हरा ने अव्वल मकाम हासिल किया। हम आपको बता दें कि तरब ज़हरा मशहूर शायर मरहूम अल्लामा सैयद कल्बे अहमद मानी जायसी की पड़पोती हैं। उन्होंने नज़्म ख़्वानी के इस मुकाबले में मानी जायसी की नज़्म कली पेश की। आज मैं कोड नंबर 7 आप सबके सामने एक नज्म पेश करने जा रही हूँ जो मेरे परदादा अल्लामा सैयद कल्बे अहमद मानी जायसी ने लिखी है, जिसका उन्वान है कली। ज़बाने हाल से यूं कह रही थी एक कली, ज़बाने हाल से यूं कह रही थी एक कली, मैं नक्शे ज़ेब-ए-दह सफ़े बहारी हूँ, मैं हूँ जहान में अफसाना साजे रंगे चमन, मैं हूँ जहान में अफसाना साजे रंगे चमन, मैं सहने बाग में राज़े शगुफ़ा कारी हूँ। अगरचे दिल से हूँ मजबूर फिर भी है ये गुनाह, अगरचे दिल से हूँ मजबूर फिर भी है ये गुनाह, है तेरी धुन हमतन शौक़े जान निसारी हूँ। मैं जानता हूँ कि बुलबुल हूँ यानी वो मखलूक, मैं जानता हूँ कि बुलबुल हूँ यानी वो मखलूक, कि अपनी जात से खुद अपनी वजह ख्वारी हूँ। मिला है मुद्दतों में वक्ते अर्ज हालते दिल, मिला है मुद्दतों में वक्ते अर्ज हालते दिल, मगर तू चुप मैं सरापा उम्मीदवारी हूँ। गुरूरे हुस्न उधर माने कलाम तुझे, गुरूरे हुस्न उधर माने कलाम तुझे, इधर मैं वक्फे सद अंदोह बेकरारी हूँ। जवाब साफ नहीं खैर कली ना सही, जवाब साफ नहीं खैर ए कली ना सही, इशारों ही में ये कह दे कि मैं तुम्हारी हूँ। शुक्रिया। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद अहम अपोजिशन जमात बीएनपी के सदर खालिदा जिया को जेल से रिहाई मिल गई है। हालांकि जेल से निकलने के बाद वो अस्पताल में भर्ती हो गई हैं। खबर है कि इलाज के लिए वो ब्रिटेन या जर्मनी जा सकती हैं। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद वहां के सदर ने खालिदा जिया की रिहाई का हुक्म दे दिया है। वाज़ेह है कि खालिदा जिया शेख हसीना की सख्त हरीफ है। साल 2007 में इलेक्शन के दौरान तशद्दुद के बाद बनी कारगुजार सरकार ने खालिदा जिया और उनके 2 बेटों पर बदउनवानी का मुकदमा दर्ज कराया था और इसी मामले में साल 2018 में उनको सजा सुनाई गई थी। इजरायली फौज ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी तंजीम अल-फतह के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया है। नाबलस के मशरिक में बालाटा कैंप पर इजरायली अफवाज ने एक ऑपरेशन के दौरान अल-फतह के सदर दफ्तर को उड़ा दिया। इजराइल के एक मिसाइल सड़क पर गिरने से कई शहरी जख्मी हो गए हैं। इजरायली फौज के जरिए लेबनान से आ रहे ड्रोन को मार गिराने के दौरान मिसाइल सड़क पर गिरी। ईरान की हिमायत याफ्ता लेबनानी जंगजू ग्रुप हिजबुल्लाह ने दावा किया था कि उसने एक फौजी गाड़ी समेत 2 इजरायली फौजी ठिकानों को निशाना बनाया था। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा।
सारा प्रणाम।